Okay, now when we are going to extract aluminium from its ore, तो जो सबसे common ore present है, that is bauxite with the formula Al2O क्या था? .XH2O, ठीक है? उसके बाद एक और ore जो हम लोग यूज करते हैं, that is cryolite. Na3AlF6, right? Another ore which can be used is potassium aluminium silicate, which is mica. Potassium aluminium silicate, which is mica. और इसका जो एग्जैक्ट है SiO3, इसका बेसिक यूनिट है, जो एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला है, दैट इज कैल्शियम एल्यूमिनियम Si3O8, ठीक है? और फिर उसके बाद आ गया आई एम सॉरी, ये माइका का नहीं है, फेल्सपार का है. दिस इज ऑफ फेल्सपार. ठीक है? माइका का जो है दैट इज ऑल्सो अ सिलिकेट ओनली, बट द फॉर्मूला इज कैल्शियम पोटेशियम एल्यूमिनियम Si2O10. सिलिकेट्स में जो बेसिक यूनिट रहता है हमेशा, दैट इज SiO3. ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है? सो Si2O10 whole OH twice. So these are the 4 units. The ores, but जो सबसे easily हम लोग recommend करते हैं या सबसे popular जो है, that is going to be bauxite. Bauxite, if you are talking of, तो हम लोग extraction of aluminium इससे कैसे करेंगे? We are going to do 2 steps. The first one, that is purification of bauxite. जो bauxite under the earth's crust हमें मिलता है, that is not a purified form of bauxite. It contains many impurities. तो purify करने के लिए हम लोग bauxite को क्या करते हैं? You can write down the steps. Number 1, the process जिससे हम purify करते हैं, that is known as Bayer's process. ठीक है? In this process, bauxite is treated with 45% of concentrated hot NaOH. hot NaOH. तो जब इसको NaOH के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है. The reaction being Al2O3.2H2O, which is bauxite, plus 45% sodium hydroxide in presence of water to give us sodium illuminate. This is the formula of sodium illuminate. ठीक है? जब ये सोडियम illuminate बन गया तो इसमें हम लोग थर्ड क्या करेंगे? थर्ड जो हमारे पास स्टेप है, you can write down the impurities of Fe2O3 and silica are removed by filtration. ठीक है? So what have we done over here? हमने जो bauxite था उसको react करा है with NaOH in presence of water to give us sodium illuminate, और जो इसमें impurities रह गई, they are removed by what? Filtration. Then the fourth is solution जो हमारे पास ये बनी, this solution
being basic in nature, solution is acidified by passing carbon dioxide gas. Carbon dioxide is an acidic gas, तो solution को हम acidify करते हैं by passing carbon dioxide. जैसे ही हम इसके साथ carbon dioxide को react करें तो neutralization reaction हो जाती है, as a result of which Al2O3, therefore Al2O3 that is going to be precipitated. Right? Al2O3 precipitate हो गया, फिर उसके बाद जो Al2O3 यहाँ पे बना उसको हम further react करते हैं. You can write down the Al2O3 that is treated with freshly prepared hydrated Al2O3, freshly prepared hydrated Al2O3, which induces precipitation. ठीक है. अब जो यहां पे हमारे पास इसके बाद Al2O3 जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम हीट करेंगे. 6th स्टेप में जो Al2O3 ऊपर प्रेसिपिटेट हुआ इसको हम हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 1473 केल्विन. ठीक है. This is the temperature when we get pure bauxite, right? So we are going to get pure alumina. Okay, so this is going to be the first step. The second step, अब जो यहाँ पे हमारे पास alumina बना है उसकी हमको electrolysis करनी है. The second step is electrolysis of fused alumina. फर्स्ट में हमने प्यूरिफाई करा, now to do electrolysis of pure alumina, what we do is we set up a cell. In this cell we have a kind of a trough. ठीक है. और ये जो ट्रफ है इसकी इनर लाइनिंग दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन. सो ये वाली जो इसकी लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन. ठीक है. अब ये जो ट्रफ है इसमें हम लोग बोलते हैं कि वी हैव 3 लेयर्स. जो सबसे नीचे वाला लेयर है, let's say this is the bottommost layer. This layer is pure alumina. या pure alumina की जगह आप लिखो pure alumina, तो हम इसमें impure aluminium डालेंगे तो this is pure aluminium. ठीक है. molten aluminium जिसे हम बुलाते हैं. और यहां से हम एक आउटलेट देते हैं for this to be removed. क्लियर हो गया? ओके. फिर उसके बाद हम ऊपर वाली जो लेयर है this consists of molten Al2O3 plus cryolite Na3AlF6, right? और जो सबसे ऊपर हमारे पास है that is the carbon lining. This we have already said that this is the carbon lining. और ये जो carbon lining है this is going to behave as cathode, right? और इसके ऊपर topmost layer में हम dip करेंगे कार्बन के rods which are going to behave as anode.
ठीक है, सो हम इसमें डिप कर रहे हैं कार्बन के रॉड्स विच आर गोइंग टू बिहेव एज एनोड्स. सो ये connected to the battery, negatively charged, which is going to be the anode, sorry, positively charged electrolytic cell है, which is going to be the anode, and cathode, which is going to be negatively charged, right? अब यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करनी है क्योंकि हमने एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पे हमने कोक, पाउडर्ड कोक डाल दिया है at the top most layer. ठीक है, so what is this? This is powdered coke. Okay, so you can now stepwise write. Number 1, alumina is mixed with molten cryolite is mixed with molten cryolite. ठीक है, ये जो molten cryolite है ये क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस ये रहता है कि ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर को. molten cryolite decreases the temperature to 1173 या मेल्टिंग पॉइंट आप लिख लो टेम्परेचर की जगह, to 1173 Kelvin, and also increases the electrical conductivity. Also increases the electrical conductivity. So ये क्रायोलाइट के functions हैं, right? फिर उसके बाद second लिखो point 2. The process of electrolysis is carried out in an electrolytic tank. Is carried out in an electrolytic tank whose inner lining is made up of carbon, which behaves as a cathode. ठीक है, then number 3, anode consists of carbon rods which are dipped in the tank. ठीक है, so we have dipped the rods inside the tank. Okay, अब basically हमने इसके ऊपर क्या किया है, we have sprinkled powdered coke, powdered coke is in the topmost chamber, right, which helps in the reduction of alumina to aluminium. So हमारे पास आ गया, we have put alumina, this reacts with carbon to give us एल्यूमिनियम. ओके, अब ये जो एल्यूमिनियम है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस इसमें होनी है. सो एल्यूमिनियम की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, सो वी हैव द एनोड रिएक्शन. एनोड कार्बन का बना हुआ है, सो एनोड पे क्या होगा, Al3 पॉजिटिव जो यहां पे बन रहा है, it gains electrons to give us aluminium. ठीक है, और फिर उसके बाद
कैथोड की रिएक्शन, कैथोड में जो कार्बन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, विच वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम द मेल्ट ऑफ एल्यूमिना. सो कार्बन प्लस O negative from the melt to give us carbon monoxide, right? And in a similar manner it can also give us, if we are taking electrons भी show कर देते हैं यहाँ पे, it can give us carbon dioxide, राइट? और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स. Okay, so over here what we have got now, we have got at the anode we've got aluminium, at the cathode we've got carbon monoxide and carbon dioxide. तो last point लिखो, 6th point इसमें, the oxygen evolved at the anode combines with carbon of the anode to produce carbon monoxide, which escapes out. ठीक है? सो अगर हमको 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो फॉर एवरी 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम ½ kg ऑफ कार्बन जो है वो यूज हो जाता है टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. सो आफ्टर एवरी लिटिल वाइल हमको ये जो कार्बन रॉड्स है इनको रिप्लेनिश करना पड़ता है. ठीक है? अब हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया. नाउ दिस एल्यूमिनियम इट इज गोइंग टू हैव इम्प्योरिटीज. सो द लास्ट जो हमारे पास रह जाता है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम. The third step is refining of aluminium. Refining of aluminium. So let's write down the steps in refining. Number 1, this is जो हमको एल्यूमिनियम मिला, that is already 99% pure, but still we refine it in an apparatus which is known as the Hoopes cell. ठीक है? Hoopes cell में भी ऐसे ही हमारे पास same kind of a ट्रैप होता है, जैसे हमारे पास उसमें था इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और इसमें भी हम लोग कार्बन की लाइनिंग देते हैं. ठीक है? सो ये इसके अंदर हमने एक कार्बन की लाइनिंग दे दी है. राइट? फिर उसके अंदर वी हैव टेकन प्योर एल्यूमिनियम एट द टॉप, और उसमें हमने कार्बन के रॉड्स प्लेस कर दिए. दिस वेज. दिस इज द रॉड्स ऑफ कार्बन. ओके, यहां पे हम एक टैपिंग होल डालते हैं. एक टैप के साथ इसको हमने फिक्स किया हुआ है. दिस इज नोन एज द टैपिंग होल. ओके, जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वी पुट इनसाइड दिस. ओके, सो हमारे पास क्या होगा, द टॉप मोस्ट लेयर टिल हियर दैट इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम. दिस इज प्योर एल्यूमिनियम. फिर उसके नीचे एक जो लेयर आती है, दिस कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. दीज आर इम्प्योरिटीज ऑफ फ्लोराइड्स. और सबसे नीचे हमारे पास
impure aluminium. ठीक है, अगेन दिस इज द कनेक्टेड टू द बैटरी. तो ऊपर वाला जो हमारे पास है दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड, और ये वाली जो कार्बन लाइनिंग है दिस इज गोइंग टू बिहेव एज एनोड. Right? So this is the apparatus which is kind of a Hooke's cell. So you can write down number 1. The top layer consists of this one. The top layer consists of pure aluminium, having carbon rods dipped into it. These carbon rods behave as cathode. Number 2, the middle layer consists of impurities of this one, impurities of fluorides, sodium, barium, etc. This middle layer behave as electrolyte and also consists of aluminium. Then number 3, the middle layer has a mixture of fluorides of sodium, barium and aluminium. The bottom layer consists of impure aluminium which acts as anode. ठीक है. Now what is basically happening over here is कि जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो जो इसमें से एल्यूमिनियम होगा that will be attracted towards the cathode. ठीक है. So cathode में रिडक्शन रिएक्शन होती है ना हमारी, यहाँ से जितना भी एल्यूमिनियम है that goes over here and starts forming a layer on the top. तो इस लेयर को हम इस टैपिंग होल से निकालते रहते हैं. It can be removed, right? जब यहाँ पे एल्यूमिनियम खत्म होएगा तो नीचे वाली impure लेयर से एल्यूमिनियम यहाँ चला जाता है and the same process that can be again carried out. यहाँ चला गया, फिर यहाँ से वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, फिर हमने रिमूव कर दिया. So in such a manner the entire aluminium that can be purified, it can be refined. ठीक है. So this is the extraction of aluminium. The next extraction which we have in your syllabus is extraction of copper. Extraction of copper. Right? Now when we are doing the extraction of copper की सबसे पहले हम लोग ores देख लेते हैं. The first one that is copper glans with the formula Cu2S. ठीक है. फिर उसके बाद आ गया कॉपर पायराइड्स, CuFeS2. ठीक. फिर उसके बाद आता है मैलाशाइट, with the formula CuOH whole twice dot CuCO3. राइट. फिर उसके बाद आता है क्यूपराइट. Cuprite is also
also known as ruby copper. Ruby copper, and it has the formula Cu2O. Okay, and the last one is azurite. Azurite has the formula OH twice. Okay, so this is what क्या कहते हैं the ores of copper are, पर जिससे हम लोग करेंगे extract, that is copper pyrites. Copper pyrites से हम copper को extract करते हैं. So let's go on to the extraction of copper. The first step is going to be concentration of the ore, crushing and concentration of the ore, crushing and concentration. Now we have already studied this process कि हम लोगों ने ओर को क्रश किया, फिर उसके बाद हम इसको जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये सल्फाइड की ओर है, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हमने किया था, जिसमें पाइन ऑयल डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसको ब्लो करते हैं एयर एट अ वेरी हाई प्रेशर, तो जिसमें जो ओर है इंप्योरिटी सारी नीचे चली जाती है एट द बॉटम, और जो प्योर ओर है दैट विद द फ्रॉथ इट कम्स ऑन द टॉप व्हिच कैन बी रिमूव्ड, एंड हेंस जो प्योर ओर है दैट कैन बी सेपरेटेड. सो वी हैव डन दिस इन डिटेल. ओके, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस आएगा दैट इज ऑफ roasting. Roasting, heating the ore in excess of oxygen. ठीक है, that is what is going to be roasting. तो roasting में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, moisture is removed. ठीक है, then number 2, impurities of sulfur, phosphorus and arsenic are removed in the form of oxides. So phosphorus plus oxygen to give us P4O10, right? In a similar manner, sulfur की impurities भी remove हो जाती है to give sulfur dioxide, and arsenic की impurities भी remove हो जाएंगी ओके. सो रोस्टिंग से ये हो रहा है. नाउ इसमें जो कॉपर पायराइट्स हैं प्रेजेंट, क्योंकि कॉपर पायराइट्स में अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, सो इसमें थर्ड में जो कॉपर पायराइट्स है दैट इज कन्वर्टेड टू सल्फाइड्स. दोनों आयरन के और कॉपर के सल्फाइड्स अलग अलग बनेंगे. सो वी हैव रोस्टिंग. जब हम इसकी कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू गिव अस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. सो रोस्टिंग से दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन. और जो FeS यहां पे बना है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अस ओके. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर प्रोसेस. फिर उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में हमने इसकी स्मेल्टिंग करनी है, जैसे हमने आयरन की करी थी. स्मेल्टिंग, इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील. एपरेटस इज ऑलमोस्ट द सेम जैसे हमने आयरन में किया था. The blast furnace that is made up of steel. So what is going to happen in this? Write down the first
most of the ferrous sulfide gets oxidized to ferrous oxide. Most of the ferrous sulfide gets oxidized to ferrous oxide. So this is going to be the reaction. ठीक है, स्मेल्टिंग के दौरान। फिर उसके बाद जो FeO बना है इसमें, ये रिएक्ट करता है विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज द फ्लास्क, to give us ferrous silicate which is the slag. ठीक है, so slag is the impurities which can be removed. So this is the first thing which is happening during smelting. और ये जो है this being lighter, slag being lighter, ये upper सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होगी उसमें फ्लोट करना शुरू करता है एंड हेंस इट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या होता है, देखो ड्यूरिंग रोस्टिंग इफ एनी ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड इट कंबाइंस विद FeS। अगर हमारे पास ऑक्साइड कोई भी फॉर्म है वो इस FeS के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अस FeO। ओके, सो ज्यादा FeO यहां पे हो गया एंड वी गेट Cu2S। नाउ यू गो बैक ओवर हियर, रोस्टिंग के दौरान हमारे पास क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग Cu2S जो है यहां पे बना हुआ, दैट कैन फॉर्म इनटू Cu2O। ठीक है, और ये जो Cu2O है ये फर्दर FeS के साथ रिएक्ट करके हमें और FeO दे सकता है। ये FeO फिर से सिलिका के साथ रिएक्ट करके हमें स्लैग दे देगा। सो जो बची कुछ इंप्यूरिटीज भी हैं वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप लिखो, एज अ रिजल्ट ऑफ स्मेल्टिंग two different layers are formed at the bottom of the furnace. The upper layer is slag which is removed. The upper layer is slag which is removed and the bottom layer contains mostly Cu2S and a little of FeS. Cu2S and a little of FeS जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में बुलाते हैं मैट। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। इसमें हमारे पास जो FeS है जो कि यहां से हमारे को मिला वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeO बना रहा है। ये वाला जो FeO है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव अस स्लैग। ये जो स्लैग है ये लाइट होती है, अपर पोर्शन पे जाके ये सेटल डाउन हो जाती है या फ्लोट करने लग जाती है एंड कैन बी रिमूव्ड। फिर उसके बाद ये जो Cu2O है बना हुआ अगर FeS के साथ रिएक्ट करता है तो वो फिर से FeO दे देता है, अगेन slag is formed. Then we have two different layers now. Top layer is the slag and the below layer that is Cu2S and certain traces of FeS which is known as the mate. ठीक है, अब इस मेट को हम लोग टैपिंग होल से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस होता है दैट इज बेस्मराइजेशन। ओके, देन द लास्ट फोर्थ इज बेस्मराइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन लिखो, the molten mate is converted into the molten mate, sorry converted in transferred, the molten mate जो वहां पे बना था that is transferred into the Bessemer converter. ठीक है, into Bessemer converter. और यहां पे क्या होगा, in this देखो, in this traces of, जो इसके पास अब ट्रेसेस FeS के पड़े हुए थे ना, जो वो ट्रेसेस जो है they are reacted with oxygen to again give us FeO plus सेम रिएक्शन FeO में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला जो FeO है ये फिर से सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव अस स्लैग। ठीक है, वैसे ही होता है ये बेसमेल कन्वर्टर, कुछ कुछ ब्लास्ट फर्नेस की तरह ही होता है, और उसी में लेयर्स बनेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में कॉपर सल्फाइड, which is present, it reacts with oxygen to give us Cu2O and sulfur dioxide. ओके, और ये जो यहाँ पे Cu2S है और Cu2O दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो वी हैव Cu2S plus Cu2O, they react to give us copper and sulfur dioxide. So finally यहां पे अब हमें कॉपर मिला है, और फिर लास्ट हमारे पास अब क्या होगा, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। अब क्या हो रहा है इसमें, जब ये Cu2S और Cu2O को हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कॉपर आ रहा है, कॉपर इज सॉलिड इन स्टेट, पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज गैसियस, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब कॉपर के सरफेस से इवेपोरेट होती है तो वो पीछे ब्लिस्टर्स छोड़ देती है, खाली जगह छोड़ेगी ना, उसकी वजह से ब्लिस्टर क्या होता है, छाला, राइट। सो इट फॉर्म्स लाइक अ बबल, तो उसको इसीलिए हम लोग उसको क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। क्लियर? ओके, फिर लास्ट हमारे पास क्या आ गया, रिफाइनिंग। So the refining which we are going to do over here, we have already done this. Refining is done by a process which is electro refining. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी करा था कि जो impure कॉपर है उसको हम एज एनोड ले लेंगे। So it consists of a beaker, और इसके अंदर बीकर के अंदर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं which acts as 1 molar copper sulfate which acts as an electrolyte। यहाँ पे हम लोग impure कॉपर ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्योर कॉपर ले लेते हैं। So this impure copper that behaves as an anode, और ये जो प्योर कॉपर है that is the cathode। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती रहेगी यहां से, राइट। सो ये जो कॉपर यहां से निकलता है वो क्या करता है, इस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। सो प्योर कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज है दे फॉल डाउन एज डस्ट
which is known as the anode mud. Clear? So this is your extraction of copper. Copper की भी easy है, zinc की extraction भी almost इसकी तरह ही करते हैं. So last extraction which we are going to do is that of zinc. What are the ores of zinc? The first one, that is zinc blend. इसी से हमने करना है. जिंक सल्फाइड, ठीक है. फिर उसके बाद आ गया कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट. फिर उसके बाद आ गया जिंसाइट, ZnO. जिंसाइट के बाद आ गया है आपका विलेमाइट. Okay, so willemite is Zn2SiO4, right? Now इसमें से हम जो करेंगे extraction, as I told you, we are going to do it from zinc blend. It is a sulfide ore, तो इसकी भी flotation से हम concentration करते हैं, ठीक है. तो zinc blend की हम सबसे पहले same processes we are going to do the concentration that is done by froth flotation method, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे रोस्टिंग. रोस्टिंग is done at a temperature of 1200 Kelvin. Okay, so रोस्टिंग में क्या होगा, जो ZnS है उसको in excess supply of oxygen हम react करते हैं to give us zinc oxide and sulfur dioxide, ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है that is reduction. So reduction में what are we going to do? Reduce कर देते हैं इसको कार्बन के साथ at a temperature of 673 Kelvin to give us zinc. Okay, अब ये जो जिंक है इसकी हमने फिर रिफाइनिंग करनी है. रिफाइनिंग इज डन बाय द सेम मेथड जैसे हमने कॉपर की करी. इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें अगेन impure zinc will be taken as the anode and pure zinc will be taken as the cathode, or we will take a 1 molar zinc sulfate solution as electrolyte, ठीक है. So pure zinc को हम लोग उस तरह से रिफाइन कर सकते हैं. Then there is another method which is fractional distillation. Which is fractional distillation. अब इससे fractional distillation में क्या होता है, इसमें आप लिखो the zinc, the impure zinc contains impurities of cadmium, with a boiling point of 1073 Kelvin, and lead, boiling point 2024 Kelvin, and iron, boiling point 3273 Kelvin. Boiling point of zinc is 1183 Kelvin, ठीक है. अब इसमें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स कैडमियम का और जिंक का सबसे कम है,
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले डिस्टिल हो जाता है, राइट। सो जिंक और कैडमियम उसमें से सबसे पहले डिस्टिल हो जाते हैं और फिर हम लोग जिंक और कैडमियम को सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर कम्स कि हम लोगों ने 4 एक्सट्रैक्शंस करे, ओके। द फर्स्ट वन वी डिड यस्टरडे वाज दैट ऑफ आयरन, the second we did was aluminium, then we did copper, and then we did zinc. Now in entire 4 we can see that reduction of zinc oxide is only done with very, you can say, simplicity. Okay, ना हमने इसके पहले जो कॉपर करा, कॉपर के लिए हमने कितने ज्यादा प्रोसेसेस लिए, तो हमने कॉपर को कार्बन के साथ क्यों नहीं रिड्यूस किया। जो कॉपर ऑक्साइड वहां पे भी हमारे पास बन रहा था, उसको भी हम लोग इजिली रिड्यूस करके कॉपर मिल सकता था हमें, ठीक है। Now these are done on the basis of Ellingham diagrams. So we will do a comparative study of iron, then zinc, and then copper on the basis of Ellingham diagrams. कि why zinc can be easily reduced by carbon, whereas copper and aluminium cannot be reduced. So that is the last topic of this chapter, which we will finish in the next class. ठीक है?